Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Imran sir. Alaikum assalam, sir. So I'm really thankful to all for joining this session. The today's session will be the effective use of Google Classroom at Advanced Approach Part 2, and it will be presented by Sir Imran from IBI Community College, Khairpur, and it will be moderated by me. So before starting the session, here are some instructions for all the participants to please switch off or mute your mic during the session. And in Zoom, there is option of raising hand. If you want to interrupt or you want to ask any question during the session, you may use the option of raising hand during the session. And you can unmute or switch on your mic if you want to ask the question or during the discussion time. And for recording your attendance, you may write your names in the chat box. So these are kind instructions for all of our colleagues. So I'll request all to please follow these instructions while attending the session. Now, I will request, I'm really thankful to Sir Imran for his continuous support for organizing such interesting sessions for our faculty throughout all community colleges and schools. So we will begin the session after 2 minutes. Till then, I will request Sir Imran to please recite few verses from the Holy Quran. Thank you, Mudassir Sahab. Sir Imran, your voice is not that much clear. Okay, sir, I'm trying. Yeah. Hello, Mudassir Sahab, is it clear now? Sir, I cannot hear you properly. What about others? Sir Asif, can you hear Sir Imran sir? Yes, sir. I cannot hear you properly. Yeah. Sorry. Sir Imran, please switch on your mic. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible now? Yes, sir, it is audible now. So please check once again, is my voice clear or is still facing some problem? I think, sir, you need to close the mic to your mouth. Please
please unmute your mic. Sir Imran sir, please unmute your mic. Yes, sir. Mic is on. Yes, I can hear you. What about others? Asu sir, can you hear Sir Imran? Yes, sir. Okay, sir. That is better. Is it audible now? Yes, So you are it is not audible. clearly audible. You are not Okay. clearly audible. This is some now check now. Is it Yes, sir. okay? So Voice is clear. I'm listening from this mic, headphone, but my mic is on the webcam. Okay. So we are starting the session as we have many things to cover today. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. First of all, Assalamu alaikum and welcome to all of you once again in another Zoom cloud meeting session. And today we will be talking on Sir Imran, I cannot hear you properly. Like, I don't know. hello, this is please check voice now. Am I audible? Yeah, you are audible, but not that much clear. You used to be. I think, sir, it's internet issue, and if you would turn off your games videos, then I think it would be clear. So Okay. I'm if audible now. necessary, turn on the cameras, and if you don't need them, please turn them off, and then the audio would be clear. It's internet issue. Sir, I'm audible Okay. now. Yes, it is better. It is better. Okay. Hello, Assalamu alaikum. Audible now clearly. Sir, I can hear you. What about others? Yes. Yes. Okay, sir. Please begin the session. Today we will face a little problem due to internet connection, and I have changed all three mics. So still the problem is same. It means there is a problem in internet connection. So we are starting the session, and if there is any difficulty in understanding any concept, we have a PPT file that is clearly explained as well. So we will share with you all as well. So today we will talk about an effective use of Google Classroom in Advanced Approach Part 2. As quickly from previous session, we have got all these things which are written in the deck writing. RK class enable disable and through assignment questions, sharing material, adding topics, and scheduling tasks. Today we will discuss about quiz assignment, and we will learn how to assign MCQs, how to assign how to assign short answers, then paragraph. We will talk a little bit about paragraph because we have little problems in paragraph. Auto assessment, MCQ and short answers only, not paragraph, and preparing mark sheet through Google Classroom. So
First of all, a teacher needs to log in his Google account. Many class assigned की है experimental class. Teacher will go in classwork, create quiz assignment. We need to write the title here, first hourly test, and you can write any instructions. You can add anything through adding this option. वीडियो एड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में, कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में. देन वी नीड टू क्लिक ऑन गूगल डायरेक्टरी, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बट मैं ऐड नहीं कर रहा. मैं डायरेक्ट ब्लैंक क्विज को क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और मेरे सामने एक स्क्रीन आता है जहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं. फर्स्ट अवली टेस्ट मैंने लिखा, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया फर्स्ट अवली टेस्ट. उसके बाद मैंने क्वेश्चन पर, आई मीन जैसे यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. मैंने 4 ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ 8 ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा. 1 ऑप्शन अगेन क्लिक, सेकंड ऑप्शन, एंड चारों मैंने ऑप्शंस लिख दिए, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कायदाबाद, फैसलाबाद फॉर एग्जांपल. ओके, यहाँ पर देखें ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर. अब जब हम एमसीक्यूज लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ एमसीक्यूज की का ऑप्शन होना चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है. तो व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इसी पेज पर, ये सेटिंग का. तो इस सेटिंग को हमने क्लिक किया, और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विज. इनको बॉल करके डायरेक्ट हम क्विज पर आते हैं. क्विजेस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होगा मेक दिस अ क्विज. काइंडली डॉक्टर मुदस्सा प्लीज एक्नॉलेज इनऑडिबल नाउ. Can everyone listen to me? Yes, sir, I can hear you. Okay. तो यहाँ पर मेक क्विज को हम जब क्लिक करते हैं और जब सेव करेंगे हम डायरेक्टली, तो यहाँ आंसर की का ऑप्शन आएगा जो कि पहले नहीं था. अब हम आंसर की को क्लिक करते हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आप इस एमसीक्यू पर कितने मार्क्स देना चाहते हैं और की इसकी कौन सी है. तो मैंने मार्क्स को की 1. बाय डिफॉल्ट मैंने सेटिंग की, आप कुछ मार्क्स से कर सकते हैं, और मैंने की इस्लामाबाद इज द कैपिटल, और यहाँ पर मैंने डन कर दिया. अब ये एमसीक्यू की सेटिंग कंप्लीट हो गई, अभी तक असाइन नहीं हुआ है. अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, यहाँ शफल ऑप्शन ऑर्डर है. अगर आप शफल ऑप्शन ऑर्डर को क्लिक करेंगे, तो अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सबके पास ऑप्शंस शफल होते हुए उनके पास सामने आएंगे. लाजमी नहीं होगा कि हमेशा इस्लामाबाद टॉपर हो, फैसलाबाद नेक्स्ट हो और कायदाबाद थर्ड हो. पॉसिबल है कि किसी पास इस्लामाबाद लास्ट हो, फैसलाबाद फर्स्ट हो. इस तरह एक चेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तो नहीं हो सकती, लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पर कि आप ऑप्शन को शफल कर सकते हैं. मैंने ऑप्शन को शफल कर दिया. अब मैं एक और एमसीक्यू ऐड करना चाहता हूँ. ओके, तो यहाँ अगर मैं एक और एमसीक्यू ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ प्लस के सिंबल को क्लिक करूंगा, और एक नीचे से ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चन एक और टाइप करें आप. तो यहाँ मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ ईस्ट, और मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, और यहाँ पर आंसर की अवेलेबल है क्योंकि हमने पहले ही सेटिंग में क्विज को ऑन किया हुआ है. तो आंसर की को क्लिक करते हैं, अगेन मार्क असाइन करें और करेक्ट ऑप्शन, देन डन. अगेन थर्ड एमसीक्यू इसी तरह आपने मार्क्स असाइन किए, ऑप्शंस लिखे, और फिफ्थ एमसीक्यू. अब मैंने इस क्विज में 5 एमसीक्यू इनपुट कर दिए हैं, सबकी मैंने की भी असाइन कर दी है और उन पर मार्क्स भी असाइन कर दिए हैं. अब हम फर्दर प्रोसेस करने से पहले इस ऑप्शन को जो इसी पेज पर अवेलेबल है सेटिंग, इसको क्लिक करते हैं और बाकी ऑप्शंस देखने क्या है. तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ जनरल में आता है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स. एक स्टूडेंट सिर्फ एक मरतबा ही रेस्पॉन्स कर सकेगा. जब एक स्टूडेंट टेस्ट, काइंडली म्यूट योर वॉइस, म्यूट योर माइक्स प्लीज, ऑल ऑफ यू. I have muted, but again it's disabled. I don't know why. Okay. तो
इस यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक स्टूडेंट एक मरतबा ही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेगा। इसको हमने क्लिक किया, रेस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इनटू गूगल, लीव इट। इसके बाद प्रेजेंटेशन देखने क्या है, शो प्रोग्रेस बार, जितने एमसीक्यूज होते जाएंगे नीचे बार आएगा कितनी आपके परसेंट हो चुकी है टेस्ट कंप्लीट। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसको क्लिक नहीं करना है वरना क्वेश्चन तभी आपके पास टॉप पर क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5 नजर आएगा, कभी एमसीक्यू 10 नजर आएगा। तो ये ऑर्डर हम सेम रखेंगे, ऑप्शंस शफल हम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो शफल क्वेश्चन ऑर्डर को क्लिक नहीं करना है वरना क्वेश्चन की सेटिंग ही आपके पास चेंज नजर आएगा। ओके, इसके बाद क्विज़ेस को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन रिलीज मार्क। जैसे ही स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट करे और सबमिट करने के बाद स्टूडेंट के पास अपना ही रिजल्ट खुद नजर आए कैलकुलेट किया हुआ, तो आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अभी टेस्ट करने के बाद उनके पास रिजल्ट नजर ना आए और मैं खुद मैन्युअली चेक करूं, तो आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को क्लिक करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बेटर है। रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, कौन कौन से उसने मिस किए। ओके, करेक्ट आंसर क्या है, पॉइंट वैल्यूज। पॉइंट वैल्यू का मतलब है कि एक एमसीक्यू पर कितने मार्क्स हैं, ये भी स्टूडेंट देख सके, दैट इज पॉइंट वैल्यूज। तो इसको भी क्लिक कर दें और उसके बाद आप सेव कर दें। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट इज कंप्लीटली सेटल्ड। नाउ हम ये आप एरो देख रहे हैं ब्लैक, अब ये आपको कहीं पर सेव का ऑप्शन नजर नहीं आएगा, यहाँ पर सेंड का नजर आएगा। सेंड आप अगर आप करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो ये ऑप्शन, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब हम डायरेक्टली प्रीवियस विंडो में जाएंगे, यहाँ पर एरो क्लिक करें और इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने ड्यू डेट लिखी और मार्क्स पॉइंट्स, टोटल मार्क्स 5 एमसीक्यू थे, 5 मार्क्स में लिखे और यहाँ पर असाइन कर दे डायरेक्टली। टेस्ट असाइन हो चुकी है एमसीक्यूज की। दिस इज फ्रॉम टीचर्स डैशबोर्ड, टीचर क्लास वर्क में जाएगा और अब यहाँ पर टीचर को नजर आ रहा है कि कितने स्टूडेंट ने सबमिट कर चुके हैं। अब क्योंकि 100 है, इट मींस अभी तक किसी ने भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि अभी हमने असाइन किया है। ओके, अब स्टूडेंट के पास किस तरह जाएगा, अब ये स्टूडेंट की व्यू है, स्टूडेंट क्लास वर्क में जाएगा और टेस्ट को क्लिक करेगा और यहाँ टेस्ट उसके सामने इस तरह ओपन होकर आएगी। अब स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए 5 एमसीक्यूज और यहाँ पर सबमिट कर दिए, सबमिट। ये है वो प्रोग्रेस बार। मुमकिन अगर 50 एमसीक्यूज भी होंगे तो नेक्स्ट पेज पर खुद चला जाएगा, ये बार नहीं चला जाएगा। सबमिट किया स्टूडेंट ने और अब व्यू स्कोर करेगा। अभी तक स्टूडेंट का व्यू है, ये स्टूडेंट अकाउंट। अगर स्टूडेंट व्यू स्कोर को क्लिक करेगा तो इसके पास नजर आएगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं। अब ये खुद ही कैलकुलेट हो गया, टोटल पॉइंट्स 4 आउट ऑफ 5। इसका एक एमसीक्यू रॉन्ग भी है, हम देखते हैं कि क्या होगा। ओके, अब इसे 552 एमसीक्यू है वो रॉन्ग पिक किया है, सन इज ए या एन प्लेनेट। यहाँ करेक्ट आंसर भी नजर आ रहा है कि दैट इज स्टार। अब ये एक और स्टूडेंट का व्यू है, उसने भी क्लिक किया व्यू फ्रॉम अनदर स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट ने सबमिट कर दी अपनी टेस्ट। ओके, अब इसने भी सबमिट कर दिया और ये भी देख रहा है अपना स्कोर क्या है। इसके 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं और आई थिंक ये थर्ड स्टूडेंट है। तो अब सारे स्टूडेंट ने जितने भी थे टेस्ट अटेम्प्ट कर दी और सबमिट कर दी। अब देखते हैं कि असेसमेंट किस तरह होगी। अब टीचर जाएगा अपने अकाउंट में, एक्सपेरिमेंटल क्लास को क्लिक करेगा, देन क्लास वर्क को क्लिक करेगा, फर्स्ट अवर्ली टेस्ट ड्यू टुमारो, कल तक फर्स्ट टाइम है। अब यहाँ नजर आ रहा है जब इसने टीचर ने फर्स्ट अवर्ली, प्लीज इग्नोर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, फर्स्ट अवर्ली टेस्ट को क्लिक किया तो 100 in 5 स्टूडेंट ने टेस्ट अटेम्प्ट की है और एक स्टूडेंट ने सबमिट नहीं की। वी हैव 100 पार्टिसिपेंट्स नाउ। तो जब अच्छा, अब फर्दर प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट अवर्ली टेस्ट को क्लिक नहीं करेंगे वरना टेस्ट ओपन होकर आ जाएगी। अगर हम रिजल्ट देखना चाहते हैं और मार्क्स असाइन करना चाहते हैं तो वी विल क्लिक ऑन हैंड ऑन। ये हैंड ऑन का ऑप्शन है यहाँ पर, हैंड इन सॉरी, हैंड को क्लिक करें तो इसमें विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कितने स्टूडेंट ने सबमिट किया है नजर आ रहा है 500 और ये 5 कौन से हैं। यहाँ पर मार्क्स हम असाइन करना चाहेंगे। हसीब शेख एक स्टूडेंट, उसने सबमिट नहीं किया। ओके, अब स्टूडेंट के मार्क्स हमें यहाँ किससे नजर आए कि हम उनको असाइन करें वो मार्क्स। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये फोल्डर, हैंड इन के सामने फोल्डर,
इसको अगर आप क्लिक कर रहेंगे तो आई थिंक यहाँ पर भी ओपन होगा, लेकिन मेरे पास कुछ एरर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ 3 लाइंस को क्लिक करें, क्लासेस को क्लिक करें। अब यहाँ पर ये जो फोल्डर का ऑप्शन है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, आई होप यू आर वाचिंग इट वेरी केयरफुली। हम स्टूडेंट ने जो टेस्ट सबमिट की थी उसको अभी उनके रिजल्ट्स देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या रिस्पांस किया और मार्क्स असाइन करना चाहते हैं। कंप्यूटर ने तो मार्क्स असाइन कर दिए, अब हम मार्कशीट जनरेट कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने फोल्डर को क्लिक किया, ओपन फोल्डर फॉर एक्सपेरिमेंट क्लास इन गूगल ड्राइव। तो ये गूगल ड्राइव में जहाँ पर ये सारा डेटा सेव होता है वहां पर ये आपको ले जाएगा। तो आपने फोल्डर को क्लिक किया और ये स्पेस एक ओपन हुआ, ये माय ड्राइव है और यहाँ पर जितना भी डेटा मैंने जितने भी क्विज बनाए हैं वो यहाँ पर सेव हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि अभी जो आपने टेस्ट दिया था वो कौन सी फाइल थी। तो मेरे सामने है फर्स्ट वाली टेस्ट मैंने दी थी, ये बाकी टेस्ट कुछ और मैंने पहले असाइन की हुई थी। तो फर्स्ट वाली टेस्ट को मैंने क्लिक करूंगा तो ये विंडो ओपन होगी, यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे, ये टेस्ट थी। और रेस्पॉन्सेस को हम क्लिक करेंगे। अभी जब रेस्पॉन्सेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स और समरी नजर आएगी। तो समरी में स्क्रॉल डाउन करें, ये एवरेज, मीडियन, मीन सारी इसके स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। कौन से क्वेश्चन पर कितने मार्क्स है, किस स्टूडेंट ने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया, जैसे हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ ईस्ट, 4 स्टूडेंट ने अल्लामा इकबाल और 1 स्टूडेंट ने जावेद इकबाल को टिक किया। इसी तरह से स्मॉलेस्ट पार्टिकल 3 स्टूडेंट ने एटम को टिक किया, 1 स्टूडेंट ने मॉलिक्यूल और 1 स्टूडेंट ने एलिमेंट को टिक किया। इसी तरह सारे ऑप्शन हम आपको ऊपर जाते हैं पर सेम पेज पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, 1 आउट ऑफ 6। व्यू ऑप्शंस। अच्छा, ये अब हर स्टूडेंट का अलग अलग रेस्पॉन्स है। फर्स्ट स्टूडेंट ने, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन में कितने रेस्पॉन्स थे, 4 रेस्पॉन्सेज आए। आई थिंक ये इंडिविजुअल स्टूडेंट का है कि आप अगर एक अलग से स्टूडेंट का आप यहाँ देखें, ये 1 आउट ऑफ 5 लिखा है, यानी कि फर्स्ट ये स्टूडेंट है, ये उसने फर्स्ट एमसीक्यू कैसे रेस्पॉन्स किया, उसने इस्लामाबाद ही टिक किया। अब ये सेकंड स्टूडेंट है, इसने टिक किया है फैजाबाद। तो अब यहाँ पर आप उनको फीडबैक भी दे सकते हैं कि जो उसने रॉन्ग आंसर दिया है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं इसको फीडबैक देता हूँ कि फैजाबाद इज इन नियर IVSCK फॉर एग्जांपल, और ये फीडबैक स्टूडेंट के पास भी जाएगा। इसी तरह से लास्ट इसी विंडो पर ऑप्शन है इंडिविजुअल। अब इस ऑप्शन में पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ली, जो कि हमें वहां मार्कशीट में पुट करनी है। अब यहाँ पर नजर आ गया 1 आउट ऑफ 5, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 4 आउट ऑफ 5। फर्स्ट स्टूडेंट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टूडेंट का रिजल्ट है, 4 मार्क्स इसने लिए थे। अब आप ये 4 मार्क्स वहां पर पुट करेंगे, नोट करते जाएंगे और वहां पर पुट करते जाएंगे। वहां भी हम जा रहे हैं अभी। ये सेकंड स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये 2 लिखा नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पर इसने 3 मार्क्स लिए हैं। थर्ड स्टूडेंट ने जो 5 MCQ अटेम्प्ट किए उसमें 2 मार्क्स लिए, फोर्थ ने 5 सारे क्वेश्चन सही किए, और फिफ्थ स्टूडेंट ने 3 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो ये है वो स्पेस जहां आपको नजर आएगा कि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या था, और जो गूगल क्लासरूम में मार्क्स कैलकुलेट की थी वो कितनी मार्क्स कैलकुलेट की, जिसको हम पुट करके मार्कशीट मैन्युअली ड्रॉ कर सके, बना सके। यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू रेस्पॉन्सेज इन शीट, ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं। इसको जब क्लिक करेंगे तो ये भी एक एक्सेल फाइल में कंप्लीट डेटा आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ने 4 मार्क्स, सेकंड के 3, थर्ड के 2, और आप ये आई थिंक बेटर होगा आप इसको डाउनलोड करके मार्क्स पुट करें। ये फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या था, ये सारे डिटेल्स आप खुद डिटेल में देख लें। अच्छा, अब हम वापस जा रहे हैं टीचर्स डैशबोर्ड पर। हमने वहां से मार्क्स नोट की और यहाँ पर हम उनके मार्क्स असाइन करते जाएंगे। फर्स्ट के 4 मार्क्स थे, और फिर आप क्लिक करेंगे ये 3 डॉट्स को, रिटर्न कर देंगे। कंफर्म रेटेड स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड एंड चेक कैन चेक एनी ग्रेड दैट यू हैव लेफ्ट। मैंने इसको ये फर्स्ट स्टूडेंट को जो असाइन किया नीचे आ गया, और सेकंड को भी असाइन की मार्क्स, थर्ड को भी, और सारे स्टूडेंट को मैंने मार्क्स असाइन कर दी। यहाँ पर इसी पेज पर एक ऑप्शन है सेटिंग का, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हाँ, तो ये सारा जो डेटा है, कॉपी ऑल मार्क्स टू गूगल शीट का मतलब है कि आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं, 5
6 या 7 जितने भी टेस्ट दिए सबका रिजल्ट गूगल शीट्स में आपको कॉपी करने के बाद नजर आए, खुद कॉपी करेगा गूगल शीट में आपको नजर आएगा। डाउनलोड ऑल मार्क्स एससी एसवी ये अलग से फॉर्मेट में आपको मार्कशीट नजर आएगी। डाउनलोड दीज मार्क्स यानी कि अभी जो इस टेस्ट में हमने मार्क्स असाइन किए हैं सिर्फ वो मार्क्स डाउनलोड करें। तो ये आपको नजर आ रहा है इस तरह, इनको देखें। ओके, अब हमने यहाँ तक ये डिस्कस किया कि कोई असाइनमेंट एमसीक्यू किस तरह असाइन की जाती है, स्टूडेंट किस तरह अटेम्प्ट करता है, फिर वो रिटर्न करता है, टीचर किस तरह मार्कशीट जनरेट करता है। अब तक हमने ये डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि अच्छा एक और ऑप्शन अभी अनदर क्विज असाइनमेंट, हम थोड़ा क्विकली इसमें जाते हैं। सेम ऑप्शंस हैं, क्लास वर्क में जाएगा टीचर, क्रिएट असाइनमेंट के थ्रू। अच्छा यहाँ देखिए अब हम असाइनमेंट के थ्रू क्विज असाइनमेंट बना सकते हैं। ये एंड्रॉयड पर भी हो सकता है, ये विंडोज है। असाइनमेंट आपने क्लिक की, टाइटल लिखा, अब यहाँ पर कोई पहले खुद ब खुद एक डॉक्यूमेंट आ रहा था वो नजर नहीं आ रहा, तो अब हम ये क्रिएट के जरिए से फॉर्म को क्लिक करेंगे। अब क्लिक किया फॉर्म को और वही ऑप्शंस वही विंडो नजर आया। अब यहाँ पर लेट सपोज अगर अभी मैं एक नया क्वेश्चन ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे 20 मिनट लग जाएंगे, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये एक ऑप्शन है, ये प्लस तो ऑप्शन है कि एक नया एमसीक्यू बनाए, लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है इंपोर्ट क्वेश्चंस। आपने गूगल फॉर्म में पहले ही क्वेश्चंस बना रखे हैं, गूगल फॉर्म में किस तरह बनाते हैं दैट इज योर यू कैन से अ टास्क। आप उसको देखें किस तरह गूगल फॉर्म में प्रिपेयर किस तरह की जाते हैं। यहाँ पर आप इंपोर्ट को क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी। ये वो क्विज असाइनमेंट्स हैं जो कि आपने पहले से बना रखी है। मैंने लेट सपोज फर्स्ट वाली टेस्ट मैंने पहले बनाई हुई है, उसी टेस्ट में दोबारा यूटिलाइज कर रहा हूँ एक डिफरेंट क्विज बनाने के लिए। तो फर्स्ट वाली को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं। आपने कोई और टेस्ट क्लिक की उसके एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे। यहाँ सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ क्योंकि सारे वही क्वेश्चंस यहाँ इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट क्वेश्चन क्लिक किया और आप देखें कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मुझे और भी एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, 5 वही क्वेश्चंस। रेस्पॉन्सेज को क्लिक करता हूँ, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं क्योंकि अभी तक टेस्ट मैंने असाइन ही नहीं किए। अब यहाँ पर हम जो लास्ट टाइम फॉर्म लिमिटर एक एप्लीकेशन कह रहे हैं, एक्सटेंशन कह रहे हैं, वो हमने इंस्टॉल करना सीखी थी, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो फॉर्म लिमिटर को जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म लिमिटर का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करें, सेट लिमिट, यहाँ विंडो ओपन होगी, सिलेक्ट डेट एंड टाइम, आपने डेटा फिल किया इसमें और टाइम डेट ईच एंड एवरीथिंग फिल किया। यहाँ एक ऑप्शन ईमेल फॉर्म ऑनर व्हेन सबमिशन आर क्लोज, जब सारे स्टूडेंट टेस्ट कवर कर लेंगे, कंप्लीट करके सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी। 7 इनेबल, हमने क्विज सेव कर लिया। अब हम वापस जाते हैं असाइन करने, तो यहाँ टाइटल लिखेंगे पहले, तो आप ये टाइटल लिखा आपने थर्ड वाली टेस्ट और फिर आपने असाइन कर दिया राइट कॉर्नर पर। लेकिन उससे पहले आपने ड्यू डेट भी लिख दी और पॉइंट्स भी लिखे और फिर अब असाइन किया। अब असाइन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा स्केड्यूल मीटिंग, असाइन करने से पहले सॉरी। हमने जो फॉर्म लिमिटर में डेट टाइम लिखा था उससे आधा घंटा पहले कि हम टाइम यहाँ पर स्केड्यूल मीटिंग में देखेंगे। स्केड्यूल में वो टाइम बुक करेंगे जिस वक्त स्टूडेंट टेस्ट स्टार्ट करेगा, और जो फॉर्म लिमिटर में था डेट और टाइम वो टाइम था जिस वक्त टेस्ट जिस टाइम के बाद कोई भी स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके पास वो टेस्ट ओपन ही नहीं होगी। लेट मी रिपीट, फॉर्म लिमिटर में वो डेट होती है कि जिस डेट और टाइम के बाद टेस्ट अवेलेबल ना हो स्टूडेंट्स के लिए, और स्केड्यूल में वो टाइम डेट होती है जिस वक्त स्टूडेंट टेस्ट स्टार्ट करना चाहें, अब वो टाइम उनको असाइन करेंगे। तो यहाँ आप स्केड्यूल करेंगे, इसी वक्त पे टेस्ट विजिबल होगी, लेकिन आप पहले एक अनाउंसमेंट करेंगे कि इस टाइम पर आपके पास टेस्ट विजिबल होगी, तो आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, स्केड्यूल कर दिया आपने और स्टूडेंट के पास टेस्ट चली गई। अब ये टीचर का डैशबोर्ड यहाँ नजर आ रहा है, थर्ड वाली टेस्ट असाइन, और बाकी प्रोसेस सेम होगा। स्टूडेंट के पास टेस्ट आएगी, वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और आप टीचर उसी तरह से जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मार्क्स इस तरह असाइन करेगा। अब हम क्विज असाइनमेंट शॉर्ट टेस्ट, मुदस्सिर साहब, इज इट एवरीथिंग ओके? Should we proceed now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Please go ahead.
सो क्विज असाइनमेंट शॉर्ट आंसर किस तरह, इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, कुछ ऑप्शन फंक्शन नहीं करेंगे, हम उनको थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अभी आपको इग्नाइट करूँगा, कुछ ऑप्शंस शो करूँगा, बताऊँगा। इसको डिटेल में आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन पर, आपका अपना अकाउंट है, 2-3 अकाउंट आप और क्रिएट कर दें फॉर स्टूडेंट्स, जिसको आप खुद ही ऑपरेट करेंगे, उसमें आप खुद चेक करके देखेंगे कि किस तरह शॉर्ट आंसर हमें एक असाइनमेंट बनानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इश्यूज किस तरह के आ सकते हैं, मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको। अपना अकाउंट मेरा, क्लास वर्क, क्रिएट, क्विज असाइनमेंट या असाइनमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। टाइटल लिखा मैंने, ब्लैंक क्विज तो क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन डिफाइन फ्रैक्शन। अब एमसीक्यूज नहीं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और शॉर्ट आंसर को क्लिक करता हूँ। यहाँ आंसर की आती है, आंसर को जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मार्क्स आते हैं कि कितने मार्क्स असाइन करना चाहते हैं। मैंने 2 मार्क्स असाइन कर दी, डिफाइन पर। अब यहाँ पर 8 करेक्ट आंसर आ रहा है। इसको जब क्लिक करते हैं तो अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन कंप्लीटली। अब यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 करेक्ट आंसर, यानी कि दूसरा भी करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, यानी जितने भी लिखेंगे वो सारे ही इसको लिखने होंगे। तो यहाँ पर मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि आप 8 करेक्ट आंसर एक हो तो ऑप्शन को क्लिक ना करें, सिर्फ एक क्वेश्चन ही लिखें। तो करेक्ट आंसर मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने डन कर दिया। और रिक्वायर्ड, ये लाजमी है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन दिए, इसमें 4 किए और 5th गलती से रह गया बेख्याली में, जब वो सबमिट करेगा तो उसको एक ऑप्शन मैसेज आएगा कि ये 5th एमसीक्यू भी रिक्वायर्ड है, आप इसको पहले अटेम्प्ट करें, आपको सही आता है या नहीं, जैसे भी आप अटेम्प्ट करें उसके बाद ही सबमिट होगा। तो ये इस ऑप्शन को आपने लाजमी क्लिक करना है, चेक इन करना है रिक्वायर्ड को। अच्छा, यहाँ पर 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं, रेस्पॉन्ड वैलिडेशन आता है। तो इसको भी आप, मेरे सजेशन ये है कि आप इसको चेक इन ना करें, इसमें भी काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा स्टूडेंट कि जो आंसर आपने लिखा है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग और वही स्पेसेस, इवन डॉट भी वही स्टूडेंट लिखे जो कि आपने लिखा है। इसका एक और यूज पैराग्राफ में भी आएगा कि कितने लेटेस्ट का पैराग्राफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, वो लिमिटेशंस यहाँ पर होती हैं। तो हर जगह इसको आप यूज ना करें, नंबर्स जहाँ रिक्वायर्ड हो वहां पे यूज करें। जैसे मैंने कहा कि पैराग्राफ में कितने लेटर्स का होना चाहिए, कम से कम 100 लेटर्स का, 1000 लेटर्स का, वहां यूज कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस को क्लिक करें, एक और एमसीक्यू आएगा और उसको मैंने शॉर्ट आंसर पे लिखिए यहाँ पर, और व्हाट शुड द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड डू इन करंट सिचुएशन। मैंने लिखा वी शुड स्टे एट होम, we should wash our hands often, we should help other dot। अब ये फॉर्मेट आपको नहीं लिखना है, इसमें ये होगा कि स्टूडेंट के तीनों सेंटेंस ही उनको लिखने पड़ेंगे वरना उनका सबमिट ही नहीं होगा। तो मैं आपको इश्यूज बता रहा हूँ कि क्या हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक आंसर लिखना है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मल्टीपल वर्ड्स के लिए नहीं होता। जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर का जो टूल है, फीचर है, ये आप वहां यूज करें जहां पर आपको सिंगल वर्डेड आंसर रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल कहीं आपको डेट रिक्वायर्ड हो कि कौन सी डेट पर कोई इंसिडेंट हुआ, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। आपने क्वेश्चंस बताऊंगा यहाँ पर क्या होता है। डिस्क्राइब द टर्म इक्वेशन, ये 3rd एमसीक्यू है। ये मैंने 2 ऑप्शन लिखे हैं इसमें और 5 मार्क्स दिए हैं, और मैंने एमसीक्यू आगे सेम प्रोसेस से मैंने असाइन कर दिया। आप स्टूडेंट ओपन करता है और स्टूडेंट के पास ही सामने टेस्ट ओपन होती नजर आ रही है। डिफाइन फ्रैक्शन स्टूडेंट लिखा अ पार्ट ऑफ होल, बाकी एमसीक्यू भी स्टूडेंट ने फिल कर दिए और सबमिट किया। अब स्टूडेंट जब देखता है तो उसको नजर आता है कि अ पार्ट ऑफ होल, लेकिन करेक्ट आंसर अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हालांकि ये स्टूडेंट लिखा वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो टीचर ने लिखा था कि करेक्ट आंसर अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, तो एग्जैक्टली यही लिखना होगा स्टूडेंट को। इसी वजह से इस ऑप्शन को यूज करना बेहतर नहीं होगा, सिर्फ वहां पर यूज करना बेहतर होगा जहां आपको सिंगल वर्ड आंसर रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल अभी एक और टेस्ट में आएगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो एक ही आंसर है एटम।
तो एटम वहां पर आप ये शॉर्ट आंसर लिखना बेहतर होगा। जैसे शुड स्टे एट होम, तो ये आंसर सही है, लेकिन बाकी भी लिखना, अब इसको पता नहीं कि टीचर क्या क्या चाहता है कि मैं लिखूं, इसलिए ये प्रैक्टिस विल बी फेल। ओके, एक और स्टूडेंट ने अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब ये देखिए स्टूडेंट ने ये तीनों सेंटेंस लिखे, वी शुड स्टे एट होम, वी शुड वॉश हैंड्स, वी शुड हेल्प अदर्स, लेकिन एस यहाँ दे दी, लेकिन करेक्ट आंसर है वी शुड हेल्प अदर। तो सिर्फ एक एस का भी अगर एरर आया तो स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, यू शुड यूज व्हेन यू नीड वन वर्डेड आंसर। ये एक और स्टूडेंट है, इसने भी ट्राई की और इश्यूज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं आप आगे क्या है, एरोस नहीं लगे हुए तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ओके, अब ये जो टेस्ट अभी अटेम्प्ट की स्टूडेंट ने, अब टीचर के साथ असेस करेगा। टीचर के पास नजर आया कि 3 स्टूडेंट ने सबमिट की है और 2 ने सबमिट नहीं की। आगे सेम प्रोसेस है, और जैसे हम प्रीवियसली देखा कि मैन्युअली आप मार्कशीट असाइन कर सकते हैं, वहां से गूगल ड्राइव में जाकर मार्क्स देखें और यहाँ पर असाइन करेंगे। अब एक और टेस्ट है जिसमें वर्ड टेस्ट का मैंने नाम दिया है, राइट नेम्स ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसके आंसर है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड केपी के। अब देखने के एक और एमसीक्यू है, स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर मैटर इज कॉल्ड एटम, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, सिंगल वर्ड है, सिंगल नंबर है 1947। और हमने इसको लेबल किया और ये असाइन कर दी। स्टूडेंट ने क्या रिस्पांस किया, दिस इज स्क्रीन ऑफ स्टूडेंट्स अकाउंट। स्टूडेंट लिखा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के, आंसर इज करेक्ट। सेकंड लिखा एटम 1947, इट्स वर्किंग वेल। एक और स्टूडेंट ने सीक्वेंस चेंज कर दी, सिंध के बाद पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिख दिया, वो भी रॉन्ग हो गया। सो दिस इज नॉट इवन गुड प्रैक्टिस। लेकिन एटम के लिए एटम ही लिखेगा और कुछ नहीं लिखेगा। हाँ, ये आप बता सकते हैं कि आप जो भी आंसर लिखें वो स्मॉल अल्फाबेट में, और आप भी जब आंसर की बनाए तो स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखें, वरना अगर एटम की ए भी कम कैपिटल हो गई तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन। Get follow the instructions from the Google Classroom. Okay. अब हम लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर डिस्कस करना चाहते हैं। आज का जो सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, एक पैराग्राफ रहता वो भी डिस्कस करेंगे। Now whatever I'm going to discuss, that is most important. अब I would like to say that मेरा पर्पस ये नहीं कि आपकी इश्यूज क्रिएट किए जाएं, आपको हेडेक क्रिएट किए जाए, लेकिन I have to explain all the features which are available in Google Classroom. तो एक प्लेटफॉर्म था एंड्रॉइड का, एक प्लेटफॉर्म था विंडोज का। कुछ ऑप्शंस एंड्रॉइड के विंडोज में नहीं है, कुछ विंडोज के एंड्रॉइड में नहीं है। ओके, अब विंडोज में भी 2 तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते हैं। जीमेल का डोमेन जिसमें हम सब वर्किंग कर रहे हैं, एक और प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जीमेल के अलावा कोई और डोमेन पर आप कोई अकाउंट बना रहे हैं और गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ और बेहतर फीचर्स हमें नजर आते हैं, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ऑटो चेकिंग कंप्लीटली, तो वो भी जीमेल के डोमेन में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आज हमने डिस्कस किया, सीखा कि जब स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट करता है और तो टीचर मार्कशीट खुद बनाता है, फाइनल मार्क्स गूगल क्लासरूम तो उसको मार्क्स असाइन कर देता है। 50 एमसीक्यूज आपने असाइन किए, 50 के 50 कैलकुलेट की गूगल क्लासरूम ने, आपने उनके मार्क्स देखे टोटल कितने अचीव किए स्टूडेंट ने। अब मार्क्स आप मैन्युअली बनाते हैं, लेकिन अदर डोमेन में मार्कशीट भी गूगल क्लासरूम खुद बनाता है, टीचर को वो भी डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउ, लेट्स सी। क्विज असाइनमेंट फ्रॉम एन अकाउंट विद डोमेन अदर देन जीमेल। अगर कोई चीज आज रहे भी कि तो हम नेक्स्ट टाइम इसको कवर कर लेंगे, लाइक पैराग्राफ में कुछ और भी सेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ आज भी डिस्कस करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्क्रीन नजर आ रहा है, ये मेरे अपने आईबी के डोमेन से मैंने ये अकाउंट बनाया है, और यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि मीट वीडियो चैट इज नाउ अवेलेबल इन क्लासरूम, जो कि प्रीवियस में नहीं था। मीट वीडियो यानी गूगल मीट के जरिए से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, जीमेल के अकाउंट में हैंगआउट के जरिए, और यहाँ पर गूगल मीट के जरिए हम अरेंज करते हैं। यहाँ ग्रेड लिखा है, मार्क्स
मार्क्स की जगह पर। ओके, तो मैंने, अच्छा यहाँ पर आप ये जो सेटिंग का ऑप्शन है फ्रंट पेज पर, यहाँ क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ भी आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे। ग्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ नजर आएगा, और ग्रेड खुद किस तरह करें, और कैटेगरीज भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेल, अब क्लास वर्क में मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने ब्लैंक क्विज बनाया। बाकी सारे ऑप्शन सेम। जो नया फीचर है वो ये है कि यहाँ ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जो कि जीमेल के अकाउंट में नहीं था। ये ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन मार्कशीट भी खुद डेवलप करता है, टीचर को वो भी डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट सिंगल क्लिक, और 50 के 50 स्टूडेंट्स, हर एक ने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, सबकी मार्कशीट ग्रेड इंपोर्टिंग के सिंगल क्लिक से मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। अब ये आपने इसको क्लिक करना है, ग्रेड इंपोर्टिंग को, ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक क्विज को क्लिक करें और आपने वही मेथड फॉलो किया इंपोर्टिंग एमसीक्यूज का, और ये आपने एमसीक्यूज डेवलप किए। अब यहाँ सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में देखें restrict to user in Sakhar IB and its trusted organizations, limit to one response। सिर्फ IB इसी डोमेन के स्टूडेंट्स ही इसको यूज कर सकेंगे, यही इसका डीमेरिट है। बट वी हैव टू डिस्कस ऑल द ऑप्शंस, मे भी कोई सॉल्यूशन इसका निकल आ जाए। क्विज में मैक्टिस क्विज, ओके, बाकी ऑप्शन सेम है। हम वापस जाते हैं और इसको ग्रेड इंपोर्टिंग, ये देखिए ऑन हो गया है। अब हम असाइन करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, रब्रिक के नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा ओरिजिनलिटी रिपोर्ट्स। इवन आई डोंट नो, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस, कि इसका फंक्शन क्या है। आप भी ट्राई कर लीजिएगा इसको कि ओरिजिनलिटी रिपोर्ट्स का मतलब क्या है। हमने टेस्ट असाइन कर दी आईबी के डोमेन से। अब स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, ये टीचर का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ टर्न इन का मतलब है कि एक स्टूडेंट ने ये टेस्ट सबमिट कर दिया है, अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ एक ऑप्शन नजर आ रहा है इंपोर्ट ग्रेड्स का। आप इसको जब क्लिक करते हैं तो मैसेज पढ़ता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट ग्रेड्स फ्रॉम जनरल टेस्ट, इंपोर्टिंग ग्रेड्स विल ओवरराइड द करंट ग्रेड्स इन क्लासरूम। अगर आपने मैन्युअली भी दिए हैं तो उनको भी ओवरराइड कर देगा, ये खुद वही मार्क्स असाइन करेगा। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि आप मैन्युअली भी असाइन कर सकते हैं। तो मैंने इंपोर्ट किया और देखें ये टू मार्क्स अचीव किए हैं स्टूडेंट ने, वो खुद ब खुद आ गए। मुझे कहीं और फोल्डर में जाना नहीं पड़ा जहाँ से मैं देखूं कि मार्क्स क्या हैं। आगे चलते हैं, इसको रिटर्न करना लाजमी है। जब मार्क्स असाइन हो गए, आप 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे और रिटर्न कर देंगे। स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड एंड चेक एनी ग्रेड यू हैव लेफ्ट। इसको, अच्छा, ये जो अकाउंट है, ये जो स्टूडेंट है, ये मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट से ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, उनका भी सेम अकाउंट था। हम रिटर्न करते हैं। हम आगे चलते हैं कि एक और स्टूडेंट है सर जावेद मकई, हमारे सिंधी के टीचर हैं IB कम्युनिटी कॉलेज का, उनका भी सेम डोमेन। तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। तो सर जावेद मकई सिंधी टीचर हैं, उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट की। तो यहाँ नजर आ रहा है कि असाइन 1, तो इनको भी मार्क्स देने हैं। ओके, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं इस नेम पर, जावेद मकई पर, फिर हम करते हैं इंपोर्ट ग्रेड्स। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए भी इंपोर्ट ग्रेड, या तो ये भी हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट सब टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, आप वंस ही सारे इंपोर्ट्स करें ग्रेड्स, 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। अगेन सेम मैसेज इंपोर्ट। तो सर जावेद मकई के भी ग्रेड्स इंपोर्ट हो गए 4 आउट ऑफ 4। अब मैंने क्वेश्चन दिए थे 5, यहाँ 4 नजर आ रहे हैं। एक का मतलब ये है कि कहीं एक MCQ में मैंने मार्क्स असाइन करना मुझसे रह गया, इसलिए 4 MCQs नजर आ रहे हैं। रिटर्न किया और वापस चला गया। तो अब टीचर के डैशबोर्ड पर, मेन पेज पर यहाँ ग्रेड्स नजर आ रहे हैं। आप ग्रेड को क्लिक करें तो ये देखें मार्कशीट खुद ब खुद जनरेट हो गई। यहाँ पर भी, इस पेज पर भी इनके 2 मार्क्स और इनके 4 मार्क्स। ओके, अच्छा, अब ये एक और लास्ट असाइनमेंट है, सेम प्रोसीजर, लेकिन अब यहाँ पर मैं शॉर्ट आंसर को क्लिक करता हूँ। इट्स 11:47, वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम, सो वाइंडिंग अप द सेशन नाउ। शॉर्ट आंसर क्लिक किया आपने। व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस,
आपने करेक्ट आंसर खुद पुट किया आंसर की में ठीक है 9047। अब स्टूडेंट ने दोनों स्टूडेंट ने वो टेस्ट अटेम्प्ट कर ली है और सेम प्रोसीजर मार्क्स असाइन करने का इंपोर्टिंग ग्रेड्स के जरिए से। इट मींस ये जो इंपोर्टिंग ग्रेड है वो एमसीक्यूज पर ही नहीं बल्कि शॉर्ट आंसर्स पर भी काम करता है। दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू शो यू इन these slides in the last। तो इंपोर्टिंग ग्रेड्स ऑटोमेटिकली ग्रेड असाइन करेगा, मार्क्स जनरेट करेगा, लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि ये सिर्फ ये जीमेल के डोमेन पर अवेलेबल नहीं है, या पॉसिबल है कि मेरे पास शो नहीं हो रहा। तो ये आपको भी टास्क है कि आप भी ट्राई करें। पॉसिबल है कि इंपोर्ट ग्रेडिंग का ऑप्शन आपके लैपटॉप पर, विंडोज पर, वर्जन्स पर नजर आए, तो यू शुड गिव अस फीडबैक। अब तक जो मैंने देखा है इसको, तो वो जीमेल के डोमेन पर नजर नहीं आता, वो फीचर अवेलेबल ही नहीं है। अब इसका डीमेरिट ये है कि अगर हम आईबी के डोमेन पर ये गूगल क्लासरूम करते हैं तो स्टूडेंट्स के पास जीमेल का अकाउंट है, वो हमारी क्लास लॉग इन कर ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए यहाँ सजेशन ये है कि हम जीमेल के अकाउंट को ही कंटिन्यू करेंगे और मैन्युअली मार्कशीट जनरेट करेंगे। आपने 50 एमसीक्यूज बनाए या 100 एमसीक्यूज, गूगल क्लासरूम खुद ही मार्क्स कैलकुलेट करेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने स्टूडेंट्स के मार्क देखने के कितने आप 10 किए, वो एक नंबर आपको देखना है वो, और फिर आप इसमें असाइन करेंगे मार्कशीट में और रिटर्न कर देंगे। ये लास्ट है पैराग्राफ टेस्ट, इसमें लॉन्ग आंसर टेस्ट। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि रेस्पॉन्स वैलिडेशन, उसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने पैराग्राफ क्लिक किया और ये 3 डॉट्स को क्लिक किया तो यहाँ पर रेस्पॉन्स वैलिडेशन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, मैचेस, एजुकेशन कैन मेक, बहुत सारे ऑप्शन से आप इसको देखें। तो सजेशन यहाँ भी यही होगी कि ये रेस्पॉन्स वैलिडेशन इतना काम नहीं करता, मैंने इसको थोड़ा ही देख सका हूँ मैं इसको, और इसको आप खुद भी ज़्यादा ट्राई करें और फीडबैक दें। तो बेहतर ये होगा कि आप इस रेस्पॉन्स वैलिडेशन को यूटिलाइज ना करें, बट यू हैव टू ट्राई हाउ इट वर्क्स। ये मैंने क्विज बनाया था, राइट पैराग्राफ ऑन माय कंट्री। Pakistan is my country, it is most beautiful country in the world, I live in Sindh and so on। तो स्टूडेंट का वो भी रिस्पॉन्स भी रॉन्ग हुआ। तो आज का सेशन यहाँ तक हुआ। हमने, लेट मी समराइज, कि आज हमने डिस्कस किया कि क्विज असाइनमेंट किस तरह देते हैं और एमसीक्यूज किस तरह असाइन किए जाएं, मार्क्स किस तरह असाइन किए जाएं मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। So if you have any question regarding today's session, so please you can ask. अगर आपको any question regarding Zoom, you can ask. I will note down. Then we will discuss in Zoom session. और पैराग्राफ पर भी कुछ डिस्कशन शायद हम नेक्स्ट में भी करें, और तब तक आप लोग भी इसको ट्राई करें। Thank you. If you have any question, you can ask. Assalamu alaikum, sir. Waalaikumsalam. Sir, I want to ask that is it possible that we should apply the key to half of the question paper, the remaining should without the key, just like I apply a key over only the MCQs, because in the short answers and the paragraph, key will always create, mostly the key will create the problem because of the difference of the wording. So is it possible to apply the key over only MCQ, the remaining we should keep without key, and we should deactivate the required for the long questions or the Yes. paragraph type or the short answers? Yes, you can do this feature. If you have given 10 MCQs and you want only 5 MCQs in which key should be visible, you can do. MCQ में आप की में जाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो nothing will be visible. सिर्फ हम मार्क्स असाइन करें और बाकी फीचर अगर मैं आपको शो कर सकूं यहाँ पर क्विकली। तो
आप ये कर सकते हैं। Thank you. Thank you. So you said if we are using it through a Google ID, then the different features are there, or for the other IDs, different features are there. Means at the one time we can apply only one. Of course, suppose we are using the Google ID, we will apply only this limited features. So if I want to use the another ID, so it will be the different asking for the different इस एक टाइम में जाहिर है हम गूगल आईडी यूज करें तो वही कर रहे होंगे, अदर आईडी तो यूज नहीं कर रहे होंगे ना, तो मतलब जाहिर है हम लिमिटेड हो गए सिर्फ उन्हीं फीचर्स के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां से हम इंपोर्ट करके अपने पास गूगल आईडी में ला सकते और सबसे फायदा उठा सकते। जीमेल अकाउंट और अदर डोमेन, वो सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस दी कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। सजेशन मेरी यही है कि गूगल अकाउंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे और अदर डोमेन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ, ये मैंने कहा कि पॉसिबल है कि आपके पास जीमेल अकाउंट में भी इंपोर्ट ग्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप देख रहे हैं। तो एक वक्त हम एक अकाउंट यूज करेंगे जीमेल का अकाउंट, क्योंकि स्टूडेंट के पास भी जीमेल का अकाउंट ही अवेलेबल है, आईडी की सुविधा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन बताया कि क्या अवेलेबिलिटी हमारे पास गूगल क्लासरूम में है। तो ये आप देख सकते हैं कि आंसर की में जो प्रीवियस क्वेश्चन था, मार्क्स ऐड की और कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया, लेकिन आप ये किस तरह करेंगे? ये तो आई थिंक एमसीक्यूज में तो लाजमी है, जब शॉर्ट आंसर आप असाइन कर रहे हैं तो वहां पर आप आंसर की में कुछ भी ना लिखें, करेक्ट आंसर आप कुछ ना लिखें, तो स्टूडेंट जो भी लिखेगा उस हिसाब से आप मैन्युअली आपको चेक करना पड़ेगा, फिर ऑटो चेक गूगल क्लासरूम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। इनफैक्ट आज जो सेशन था पीपीटी वो मैंने विंडोज वर्जन से पीपीटी बनाई थी, मोबाइल से नहीं। प्रीवियस सेशन मोबाइल वर्जन से बनाए थे। तो एक बात तो ये कि एंड्रॉयड में ये ऑप्शन कोई असाइनमेंट का डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। जब कोई असाइनमेंट ही अवेलेबल नहीं है तो की का ऑप्शन भी नहीं आएगा, सिर्फ आप असाइनमेंट नॉर्मल दे सकते हैं, मटेरियल ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक बात हो सकती है, ये मेरे सामने है मोबाइल डिवाइस, इसमें आप विजिबल नहीं है। जब आप एंड्रॉयड पर असाइनमेंट देते हैं, लिसन प्लीज, जब आप एंड्रॉयड पर असाइनमेंट देते हैं तो अटैचमेंट में ड्राइव के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और फिर वहां गूगल फॉर्म्स अगर आपके एंड्रॉयड में अवेलेबल है और गूगल फॉर्म्स में आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस एमसीक्यू बनाए हुए हैं, तो असाइनमेंट, अटैचमेंट, उसमें ड्राइव का ऑप्शन जाएंगे तो गूगल फॉर्म्स का विंडो ओपन होगी। गूगल ड्राइव में से आप गूगल फॉर्म जो टेस्ट आपने बनाया वो अटैच करेंगे तो फिर आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल होगा। इट मींस कि आप गूगल फॉर्म में पहले ही एमसीक्यूज बना लेंगे, सिर्फ आपको अटैच करना है। जब आप एमसीक्यू बना रहे होंगे उस वक्त आपको की नजर आएगी, अगर आप एंड्रॉयड पर यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। गूगल फॉर्म भी मैंने गूगल फॉर्म भी यूज किया था, उसमें भी की शो नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी एंड्रॉइड पे गूगल फॉर्म से मैंने टेस्ट पेपर बनाया था तो उसमें भी की शो नहीं हो रही थी, क्योंकि गूगल फॉर्म भी मैंने एंड्रॉइड पे ही बनाया था। देखिए मैंने भी आज ये फॉर्म, इसमें एप्लीकेशन बहुत सारी है। मेरे पास है फॉर्म्स ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है, इफ यू कैन सी। तो इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है और मैंने आज ही इस पर काम किया था। Yes, I use that one. Create main form, बिल्कुल ये अवेलेबल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एड ऑप्शन, सेटिंग, ठीक है लिमिट ओपन रिस्पांस,
इसमें कुछ इशू आ रहा है. I will see this picture and we will share with you in next session inshallah. ये क्वेश्चन नोट किया. Any other question regarding to this session, or if you have any difficulty which we can discuss in next classes? Assalamu alaikum, sir. Sir, I have a question. In previous session, you have told how to assign the homework. But if the junior students are assigning the homework, they are just sending the homework with comments. So what to do with it? एक प्लीज आप अनम्यूट करें. मैं थोड़ा म्यूट ऑन कर रहा हूँ यहाँ से. Please all of you switch off your mics. आप दोबारा अनम्यूट करें जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. जी बिल्कुल. Sir, I want to ask that in previous sessions you have taught us how to assign the homework. Means students have to assign the homework that teacher can grade them or mark them. But sir, if students are junior, how they will assign the work and how we will what we will do to make them learn to how they assign the work. So they are just sending their homework in the comments. So we are just replying them or commenting them in the comments also. So what to do? This is a problem for us because students of grade 3 or 4 or 5, they are just doing this. ओके. इनका सवाल ये कि स्टूडेंट्स को हम कैसे बताएंगे. वो सिर्फ हम कोई टास्क देते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं कमेंट्स के जरिए से. इट मींस आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी फीचर्स वो यूज नहीं कर पा रहे तो प्रॉपर वे नहीं है उनका रिस्पांस करने का. हम उनको कैसे सिखाएं? तो पहली बात तो ये कि मोस्टली पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं. जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उनको गाइड करते हैं. तो टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी आई सजेस्ट कि एक वीडियो लेक्चर आप बनाएं. उनके जरिए कुछ इंस्ट्रक्शन दें कि कौन कौन से फीचर्स गूगल क्लासरूम में अवेलेबल हैं. जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक टास्क असाइन किया कोई भी XYZ. जब आप ये बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि स्टूडेंट जब वो टास्क कर रहा हो तो अटैच फाइल में क्रिएट PDF फाइल भी होता है, डॉक्स भी होता है, शीट्स भी होता है, ड्राइंग पैड भी होता है. तो वहां पर डिटेल में अपना आंसर लिखें बजाय कमेंटिंग करने के. तो ये सारे ऑप्शंस हमें बताना होंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं. तो फिर ही स्टूडेंट्स प्रॉपर तरह से आपको रेस्पॉन्स करेंगे. क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यानी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हम रेस्पॉन्स किस तरह करें. उनको सिर्फ यही पता है कि कमेंट के जरिए हम अपना होमवर्क रेस्पॉन्स कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पे लिखा और फोटो कैप्चर किया और सेंड कर दिया. जब स्टूडेंट जिस तरह फोटो कैप्चर करता है उसी ऑप्शन में नीचे ऑप्शन होते हैं क्रिएट PDF. वहाँ टाइप कर सकते हैं. मोबाइल एंड्रॉइड पर तो फिंगर से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एनीथिंग दे कैन डू. तो हमें उनको बताना होगा कि ये फीचर्स भी अवेलेबल हैं. Yes, any other question, please? Hello, Assalamualaikum, sir. Sir, just like okay. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर ये जो आज की वीडियो है ये इसकी लिंक आप शेयर करेंगे? डेली जितनी भी वीडियोस हैं लेक्चर्स वो सारे हम शेयर करते हैं. ये बिल्कुल शेयर करते हैं और ये भी शेयर करेंगे. ओके सर. ओके सर. Thank you. Sir, just like in a Zoom, we are discussing and we can explain the topics as well. But in a Google, we will just assign the task and the task and something like that. If we want to describe or explain a topic just like in a Zoom, so what we will do? उसके लिए बिल्कुल सेशन हमारा होगा क्योंकि हमारी जो प्लानिंग वो ये थी स्टार्टिंग में कि सारी चीज़ें 2 लेक्चर में ही कवर हो जाएंगी. उसमें इंट्रोडक्शन भी था, एडवांस लेवल भी थी, असाइनमेंट भी थी और गूगल हैंगआउट्स भी था, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी था. लेकिन अब जैसे जैसे हम डिस्कशन हमारी हो रही है
तो हम एक एक टॉपिक को डिटेल में टाइम दे रहे हैं। आज हमने सिर्फ असाइनमेंट पर ही काम किया। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा पॉसिबल पैराग्राफ पर हम और काम करेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे गूगल हैंगआउट्स या गूगल मीट्स पर, जिसमें आप जैसे अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। तो वी विल शेयर विथ यू द नेक्स्ट प्लान कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस टॉपिक पर होगा। तो आप गूगल हैंगआउट्स या गूगल मीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर अल्टरनेट ये है कि आप एक जैसे टास्क असाइन करते हैं उसमें अटैचमेंट में अपनी वीडियो सेंड कर दें, लेकिन वो वन साइडेड होगा, टू वे नहीं होगा। वो हैंगआउट्स में बिल्कुल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दा सफदर लगारी जी। साईं कहिड़ा हाल तव्हांजा? ख़ुशि हो साईं? अल्हम्दुलिल्लाह। साईं तमामु बहितरीन ऐं इंफॉर्मेटिव जेको आहे सेशन हलायो पिया तव्हां, ऐं असांखे जेको आहे ॾाढी ॼाण बि मिले थी, ऐं असां हुन लाइ तव्हांजा वॾा शुक्रगुज़ार आहियूं। सर मसइलो इहो आहे त ॿार जेके आहिनि ज़ूम जॾहिं मीटिंग ते कॉल कयूं था त उते सभु अचनि था, उते समूरा क्लासिस खे अटेंड कनि था जी, पर जॾहिं उन्हनि खे टास्क ॾियूं था असां उते गूगल क्लासरूम ते, त उन्हनि मां चंद जेकॾहिं 50 ॿार असांजी क्लास में एड आहिनि त उन्हनि मां जेके आहिनि वधि में वधि 5, 7 या 8 ॼणा जेके रिप्लाई था कनि। थोरो इहो असां सां मसइलो रहे थो। पोइ उन लाइ थोरो कहिड़े तरीक़े सां मोटिवेट ॿारनि खे करे सघिजे थो, उन लाइ तव्हां वटि जेके चंद अल्फाज़ आहिनि या इन जो को जेकॾहिं उपाउ हिन जा या तदबीरूं वग़ैरह हुजनि तव्हां वटि, त असांखे थोरो सलाह मशवरो ॾियो। गूगल ज़ूम ते अचनि था पर हेॾे ॿार रिप्लाई नथा कनि हुनजो जेको टास्क हुननि खे ॾियूं था। सफदर लगारी जो हिकिड़ो ई हालात असांखे कंटिन्यूसली मोटिवेट करणो पवंदो, ॿारनि खे सम्झाइणो पवंदो त टीचर्स पंहिंजो टाइम बि स्पेयर कनि था, त तव्हांखे बि घुरिजे त तव्हां हुनखे रेस्पॉन्स कयो ऐं वक़्त खे क़ीमती बणायो। ऐं जेकॾहिं तव्हां ॿार कुझु वक़्तु डिस्कनेक्ट थी वेंदो स्टडी खां त तव्हांजो लॉस थींदो। असां उनखे मोटिवेट ई करे सघूं था, इन खां अलावा कोई फ़िलहाल न आहे असां वटि। ऐं आई थिंक मोटिवेट थी वञी सघंदा। ऐं पाण बीइंग सेक्शन हेड मूं वटि सभिनी सेक्शन मुंहिंजे जेके क्लास आहिनि कॉलेज सेक्शन जा हर क्लास मां ग्रुप ठाहियो आहे ऐं व्हाट्सएप ते। त कुझु जॾहिं असां गूगल क्लास में स्टार्ट कयोसीं त उते रेस्पॉन्स तमामु घटि हुयोसीं। त मां पंहिंजे सेक्शन जे सभिनी स्टूडेंट खे मैसेज मोकिलियो, उनखे मोटिवेट कयो इन तरीक़े सां त स्टूडेंट बि टीचर्स तव्हां लाइ टाइम स्पेयर कंदा त तव्हांखे घुरिजे उनखे रेस्पॉन्स करणु घुरिजे। हिकिड़ो लर्निंग जो सिलसिलो उहो जारी रखणु सुठी ॻाल्हि आहे। त मोटिवेट थियो ऐं काफ़ी स्टूडेंट जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आयो जी। वरी महिरबानी तव्हांजी सर, वॾी महिरबानी। अॼु जे सेशन में शायदि मुंहिंजे सही इंशाल्लाह सही कबो वरी में तो उन लाइ माज़रत काफ़ी शयूं जी कोशिशि कबी त काफ़ी जल्दी कवर कजे। ठीक इंशाल्लाह। Yes, any question? Hafiz Abdul Jabbar Sandilo want to say something, I think. Any question or we should wind up this session? Hafiz Abdul Jabbar साहब तव्हां पंहिंजी माइक अनम्यूट कयो। I cannot listen you. So if there is no any other question, let me conclude this session. I'm really thankful to Sir Imran for unconditional support towards our improvement of the skills. इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼुकल्ह ॾाढो ज़रूरी आहे त पंहिंजा स्किल सेट पाण अपग्रेड कयूं। ही जेको गूगल क्लासरूम आहे इहो अॼुकल्ह रिक्वायरमेंट आहे, पंहिंजे सब्जेक्ट जे नॉलेज सां गॾु ही स्किल्स पाण खे अचणु घुरिजनि। त असीं कोशिशि कयूं पिया त जेकी बि इंफॉर्मेशन असांजी टीम वटि आहे माना पाण सभिनी वटि आहे उहा म्यूचुअली शेयर करणी आहे। ऐं प्रैक्टिस हिन जी वीडियोस असां जेको ई लर्निंग जो फेसबुक पेज ठाहियो आहे IBA कम्युनिटी कॉलेजिस जो, उन ते सभई वीडियो लेक्चर्स अपलोड थियल आहिनि ऐं उन्हनि ते जेके ही PDF आहिनि स्लाइड्स जूं जेके PDF आहिनि उन्हनि जो बि लिंक उन ते पेज ते शेयर थियल आहे ऐं इंडिविजुअली असीं हर व्हाट्सएप ग्रुप में बि इहो लिंक एड कंदा आहियूं वीडियोस जो ऐं तव्हांजे कॉन्टेक्ट एक्सेस करे सघो था। पर रिक्वेस्ट कंदो सभिनी खे त प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जेसि ताईं पाण प्रैक्टिस न कंदासीं तेसि ताईं पाण खे स्किल सेट ते महारत कोन ईंदी। मां रिक्वेस्ट कंदुसि त सभई
ईअं ई वीडियो लेक्चर्स खे खोले गॾ में गॾु वरी प्रैक्टिस कंदा वञो, गूगल क्लासरूम खोले पाण ट्राई कयो, हर आइकन ते क्लिक करे ऑप्शन खे एक्सप्लोर करे ॾिसो। हींअर सर इमरान पाण हींअर लर्न कयो आहे, पाण सभिनी खे ही इहा अप्रोच एडॉप्ट करणी आहे त यार थोरो पाण सर्च कयूं, एक्सप्लोर कयूं शयूं, त लर्निंग पंहिंजी सुठी थींदी। छो त पाण टीचर्स आहियूं, पंहिंजो माना ॿियनि खे जेसिताईं पाण जेसिताईं लर्न कोन कंदासीं नयूं शयूं, तेसिताईं पाण पंहिंजे स्टूडेंट्स खे बि मोटिवेट या उन्हनि खे सम्झाए न सघंदासीं। त आउं रिक्वेस्ट कंदुसि सभिनी फैकल्टी मेंबर्स खे त जिन जी जेकी स्ट्रेंथ आहे उहा ॿियनि कोलिग्स खे हेल्प कनि, जीअं साईं इमरान सभिनी दोस्तनि खे हेल्प करे पियो। ऐं बाक़ी जीअं हीअं क्वेरी हुयूं त भई स्टूडेंट्स खे कोन पिया माना ज़ूम सेशन स्टार्ट कनि पिया, सेशन अटेंड कनि पिया प्रॉपरली, पर गूगल क्लासरूम ते एॾो कोन पिया रेस्पॉन्ड कनि। त इहो असीं बि रियलाइज़ कयूं पिया त यार ही शइ जेकी पंहिंजे लाइ नई आहे, फैकल्टी मेंबर्स लाइ, ऐं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी करे इन शइ खे माना नई शइ आहे पाण लर्न कयूं पिया, त इहो स्टूडेंट्स ईअं ई लर्न कंदा। पर हिकिड़ी शइ जेकी पाण खे रखणी आहे उहो मोटिवेट करे रखिणो आहे स्टूडेंट्स खे त यार ही एक्सप्लोर कनि शयूं, त उन्हनि खे थोरो थोरो गाइड कंदासीं पंहिंजे गूगल क्लासरूम जे डैशबोर्ड जे ज़रिए। त प्लीज़ ही तरीक़ो आहे, को ट्यूटोरियल पाण उन्हनि सां शेयर करे छॾियूं त भई तव्हां हीअं आंसर जा क्वेरीज पोस्ट करे सघो था पंहिंजे क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में, त इहो कलेक्टिवली मुंहिंजे ख्याल में लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहंदो। त हींअर हिन टाइम ते त पाण खे, छो त हिकिड़ी अनकंडीशनल माना अनप्लैंड सिचुएशन खे पाण सभई फेस कयूं पिया, पंहिंजी का प्लैनिंग कोन थियल हुई, पर उन बावजूद आउं रियली थैंकफुल आहियां त पाण सभई हिकिड़े पेज ते आहियूं ऐं पाण लर्न कयूं पिया उन खे सिचुएशन मां ॿाहिरि निकिरण लाइ, ऐं उन जी हिकिड़ी असीं स्ट्रेटजी ठाहियूं पिया लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे सघूं। त वरी बि आउं चवंदुसि त पंहिंजे स्टूडेंट्स खे मोटिवेट कयूं ऐं थोरो थोरो उन्हनि खे पाण गाइड कंदासीं त होपफुली उहे बि ट्रैक ते अची वेंदा। त इहो लॉन्ग टर्म प्रोसेस आहे, हिकु ॾींहुं या हिकु राति में उहो कोन सिखी सघंदा, पर हा कंटिन्यूअसली पंहिंजे एफर्ट्स ऐं महिनत सां हू ज़रूरु सिखी वेंदा। त इहा कंक्लूडिंग रिमार्क्स हुआ। ऐं रियली थैंकफुल आहियां सर इमरान जो ऐं सभिनी फैकल्टी मेंबर्स जो जिन पंहिंजो क़ीमती टाइम कढियो, ऐं पंहिंजो मोर इम्पोर्टेंटली त हिन अहिड़ी सिचुएशन में पंहिंजो सभिनी चैलेंजिस खे फेस करे, लाइट इशूज़ के, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज़ के, लैपटॉप्स जे प्रॉब्लम्स थे, उन बावजूद तव्हां सभई अचो पिया, जॉइन कयो पिया, आई एम रियली थैंकफुल। पर पाण खे ईअं ई पंहिंजो थोरा थोरा कदम खणी करे कोशिशुनि कंदे रहणियूं आहिनि, ऐं होपफुली पाण इहा स्किल में बि महारत हासिल करे वेंदासीं। जीअं पाण पंहिंजे कम्युनिटी कॉलेजिस में मिसाल ॾींदा आहिनि त यार इंटीरियर में AKUB बोर्ड कोन हो, IB वारे कॉलेज या स्कूल्स इंट्रोड्यूस करायो, त ईअं फ्यूचर में ईअं मिसाल ॾींदा त यार IBA कॉलेजिस ई लर्निंग टूल्स में ॾाढा एक्सपर्ट्स आहिनि, ऐं उन्हनि जो मिसाल इंशाल्लाह फ्यूचर में माण्हू ॾींदा, ऐं इहो पंहिंजे लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि थींदी। त ऐं थैंक यू चवंदुसि सभिनी खे, ऐं प्लीज़ ईअं ई पंहिंजो अटेंड कंदा रहो सेशन, ऐं कंहिं दोस्त खे अगरि का स्किल सेट आहे, एक्सपर्ट आहे, ऐं उहो पंहिंजी एक्सपर्ट शेयर करणु चाहे थो, त उहो मूंसां राब्तो करे सघे थो, त उन जा पाण सेशन कंडक्ट कराए सघूं था, रखाए सघूं था, त सभिनी पंहिंजी कम्युनिटी खे IBA कम्युनिटी कॉलेजिस जेकी कम्युनिटी आहे उन्हनि खे फ़ाइदो रहे, ऐं पंहिंजे स्टूडेंट्स खे नई जनरेशन लाइ फ़ाइदेमंद साबित थिए। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मैं मुख्तसर सी कुछ सजेशन देना चाहूँगा और एक मोटिवेशन के लिए फ्यू वर्ड्स कि लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि हम ऑटो असेसमेंट पर भी हम काम करेंगे, तो वो ऑटो असेसमेंट का जो टूल है वो अवेलेबल मुझे नहीं आ रहा था कहीं पर भी। तो जस्ट लाइक फॉर मोटिवेशन आई एम सेइंग दिस कि उस एक ऑप्शन ऑटो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ग्रेडिंग का जो ऑप्शन को सर्च करने में मुझे कम से कम 10 घंटे लगे हैं। और मैंने गूगल को सर्च किया, यूट्यूब को सर्च किया, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ब्लॉगर्स के वीडियो सर्च किए, कहीं भी कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आया। लेकिन लास्ट में एक वीडियो मुझे मिली मलेशिया की एक टीचर की। अब उसकी लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसमें जो ऑप्शन जो मैं चाहता था कि ये इंपोर्ट ग्रेडिंग का ऑप्शन कैसे अवेलेबल हो, तो फिर उसकी वीडियो से मुझे हिंट मिली कि ये गूगल की डोमेन जीमेल की डोमेन पर नहीं मिलता, लेकिन आपकी अपनी जो कॉलेज की डोमेन है वहाँ से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे सजेशन यही है कि आप अपने अपने कॉलेजेस के जो स्पेशली साइंस कंप्यूटर और लैंग्वेज के टीचर्स हैं वो कम से कम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करें बिकॉज दे नो वेरी वेल हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर इन अ बेटर वे। वी ऑल नो कि सबके पास टेक्नोलॉजी है, सारे ही लैपटॉप्स कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के टीचर्स उसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। कहीं भी ट्रबल शूट हो तो उनको पता होता है कि इसका सोल्यूशन कहाँ अवेलेबल है। तो हमने जो इस तरह जब गूगल क्लासरूम स्टार्ट किया था आईटी कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर में, तो हमने भी आईटी की जो डोमेन है वहाँ से स्टार्ट किया। तो हमें भी हमारे कंप्यूटर टीचर ने ही ये सजेस्ट किया कि आप जीमेल के अकाउंट से गूगल को ऑपरेट करें। तो आई सजेस्ट कि आप अपने कॉलेज के कंप्यूटर और लैंग्वेज के टीचर्स ज़्यादा यूज़ करें इसको डिटेल में और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी हो तो गूगल पे टाइप करें एवरी सॉल्यूशन इज अवेलेबल ऑन गूगल रिगार्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं। I thank you all of you. Till next session. Very well, morning, sir. Thank you. Thank you. Thank you.